भारत के बड़े और भरोसेमंद आई केयर नेटवर्क डॉक्टर अग्रवाल आई हॉस्पिटल ने अब प्रीत विहार नई दिल्ली में अपना नया और मॉडर्न आई हॉस्पिटल शुरू कर दिया है। इसके साथ ही दिल्ली एनसीआर में उनका चौथा अस्पताल चालू हो गया है। इस सेंटर की जिम्मेदारी जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सिद्धार्थ सैनी संभाल रहे हैं। करीब 7,000 वर्ग फुट में फैला यह 3 मंजिला अस्पताल इस तरह बनाया गया है कि आंखों की जांच से लेकर ऑपरेशन तक की सारी सुविधाएं एक ही जगह मिल जाएं। यहाँ रोबोटिक मोतियाबिंद सर्जरी, कांटूरा लैसिक और एडवांस डायग्नोस्टिक्स मशीनें उपलब्ध हैं। एक खास सर्जिकल विंग गैलरी भी है जिससे मरीजों और उनके परिवार को इलाज की प्रक्रिया को समझने में मदद मिलती है। उद्घाटन के मौके पर केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा और पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन भी मौजूद रहे। डॉक्टर सैनी के साथ डॉक्टर सौम्या शर्मा, डॉक्टर पुनीत जैन, डॉक्टर कार्तिकेय और डॉक्टर राहुल भाटिया जैसी विशेषज्ञों की टीम मरीजों को सेवाएं देंगी। वहीं पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर जे.एस. टिट्याल का मार्गदर्शन भी अस्पताल को मिलेगा। अच्छी खबर यह है कि अस्पताल की ओर से 30 अप्रैल 2026 तक सभी के लिए फ्री कंसल्टेशन की सुविधा दी जा रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी आंखों की जांच समय पर करवा सकें। This is our first event in Delhi. So I want to start off today by letting you guys know who we are. Nobody knows Dr. Agarwal's in Delhi yet. But the hope is that over the next year or so, you find out about us. I'll give you a small snippet about where the families come from. Kaun hai ye log? So the hospital was started in 1957 by my grandparents. Both of them were ophthalmologists. They had 2 kids, again ophthalmologists. Their husband and wife, again ophthalmologists. These two had 4 kids, again ophthalmologists. So the entire family knows only one job, which is ophthalmology. We don't know anything else. We have to supplement each other by adding more areas that we can focus on to build an organization that the country can be proud for, and build an organization that we can be proud of. Now, when it comes to the expansion journey for Agarwal started in the early 2000s. We were only one hospital in Tamil Nadu. We started our expansion journey just from Tamil Nadu and slowly entered different states from Karnataka, AP, Telangana. And now, this year, 2025, we marked the entry of Agarwal into Delhi with our SouthX facility. So today, I'm very happy to share that we have 4 facilities up in Delhi NCR, and the path does not stop there. There is rampant expansion due, some of which are confirmed. I can't give you a forward-looking number, but you can expect in the next 2 years the brand to become a little more prominent. Why, expansion is extremely important. You want to penetrate the deeper pockets of the country to provide your services. But what becomes more important for the group is, number one, getting the right talent on board. We want people who resonate with our values. If you look at the family, the core of the family is ophthalmology. Business is an addition that helps us expand our core, that helps us penetrate the country and provide our services to rural pockets. Why do I say rural pockets? If you look at Tamil Nadu today, Tamil Nadu Agarwal has 80 centers now. So that much of penetration has done, right? And that is the goal. That is the goal. Every nook and corner of the country, there should be an eye care player. Either it's us or it's anyone. We are taking the lead over here, so we will continue to do so until the entire country can have eye care services. We believe that if the nation has to progress, every single vertical inside the nation has to progress, and healthcare comes right up front. We believe we are doing our job to do that. आशा अग्रवाल जी ने अभी आपको बहुत सुंदर परिचय दिया है। इसमें आई सर्जन भी हैं और कैलॉग के MBA है। आई थिंक वेरी इंस्पायरिंग प्रोफाइल। सिद्धार्थ सेन जो है, ये बच्चा ऐसा है जब इसने पहली चिल्ली मारी थी दुनिया में मैं इसको तब से जानता हूँ। यानी इसका ग्रोथ जो है मैंने उस समय से देखा है, और मुझे बड़ी खुशी है कि वो एक सफल आई सर्जन के रूप में यहाँ पर इस क्षेत्र के एक्सपेंशन के लिए भी काम करेगा। डॉक्टर टिटियाल आज नहीं है यहाँ, लेकिन
वो हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। इतने वर्षों तक वो RK आई सेंटर के डायरेक्टर रहे और मैं ये कह सकता हूँ कि वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोफेशनल्स इन दिस फील्ड। उनको मैं इस तरीके से ज़्यादा जानता हूँ। पता नहीं कितने मैंने सैकड़ों मरीजों का उनसे एम्स के डायरेक्टर पद पर रहते हुए ऑपरेशन कराया और एक टेलीफोन कॉल पे वो काम करते थे। अगले दिन का अपॉइंटमेंट और उसके 2 दिन बाद की सर्जरी। तो ये सच ए हम्बल पर्सन। तो ये तो बहुत अच्छी टीम है। फिर अभी मैं देख रहा हूँ कि डॉक्टर सौम्या, डॉक्टर कार्तिकेय, डॉक्टर राहुल, डॉक्टर संगीता, डॉक्टर मेनक भट्टाचार्य। तो मैं तो सुबह जब आया तो 2 खूबसूरत लेडीज़ ने मुझे बुके दिया नीचे। फिर उन्होंने गिफ्ट में भी लाए तो मैंने परिचय किया तो मुझे पता लगा ये तो आई सर्जन भी है। तो बहुत खुशी हुई। तो मुझे लगा कि जहाँ पे इतने ब्यूटीफुल आई सर्जन्स हैं तो उस सेंटर के बारे में तो जो है कुछ चिंता करने की प्रतीक है आपको, है ना? नहीं, फर्क पड़ता है, हर चीज़ का फर्क पड़ता है। बेटी भी डॉक्टर है जी, मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि वो भी खूबसूरत है। तो मैं देखिए नॉर्मली कोई भी अस्पताल, अभी एक और मैं हमारे करनैल सिंह जी जो ED के डायरेक्टर थे, उनकी बेटी भी आई सर्जन है। उसका एक हॉस्पिटल मतलब आई का हॉस्पिटल इनाग्रेट करने में अभी 11 बजे पहुंचना है, गुड़गांव से भी आगे। तो इसीलिए आई वॉज ए लिटिल शॉर्ट ऑफ टाइम तो मैंने सिद्धार्थ को कहा यार ये बड़ा मुश्किल सा हो गया। तो यूजुअली इनाग्रेशन जो इस तरह के सेंटर्स पे मैं करता हूँ तो लोगों को ख़राब भी लगता है। मैं कभी भी भगवान से ये प्रार्थना नहीं करता कि इस सेंटर में खूब मरीज आए, खूब ये चले, क्योंकि मैं हमेशा पॉजिटिव हेल्थ, प्रिवेंटिव हेल्थ का आदमी हूँ। लेकिन 2 फील्ड ऐसे हैं, एक तो गायनेकोलॉजिस्ट का, जितना मर्जी आप उनके लिए कामना करो कि इनके यहाँ मरीज़ ना आए, लेकिन उनके यहाँ आना ही आना है, गायनेकोलॉजिस्ट के यहाँ फीमेल्स में। और आई सर्जन का भी यह है कि बाकी बीमारियां ठीक भी हो जाए तो भी हर आदमी को कैटरैक्ट तो ज़रूर होता है जैसे जैसे उम्र बढ़ती है। तो ये ज़रूर कामना करूँगा कि जो भी आपके यहाँ पर आए, और वैसे भी बड़ी इंस्पायरिंग हिस्ट्री है 1957 से, और जो तमिलनाडु से चलकर देश की राजधानी में, और राजधानी में भी हमारे जमुना पार के अंदर आ गए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि बड़ा इंस्पायरिंग इतिहास है और बहुत क्वालिटी प्रोफेशनल सर्विसेज उन्होंने दिए हैं। और पिछले कुछ समय से 1 आध साल से मैं, जब से डॉक्टर टिटियाल रिटायर हुए हैं, इस सेंटर के बारे में इनका जो विज़न है, प्लान है, वो डॉक्टर टिटियाल मुझे बताते रहे हैं। और अभी थोड़ा बहुत सिद्धार्थ ने भी मुझे बताया। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, इन्हें से बहुत बहुत बधाई दूँगा। जब हम लोग की सरकार थी दिल्ली में 30 साल पहले, तो हमने बहुत सारी बीमारियों के एलिमिनेशन के कैंपेन्स दिल्ली में चलाए थे, पोलियो से शुरू करके। लेकिन उसमें एक महत्वपूर्ण कैंपेन कैटरैक्ट फ्री दिल्ली का था, और उसमें एक समय में 600 जगह पर हम लोग सेंटर्स लगाते थे। सारे आई सर्जन, सरकारी प्राइवेट सब इन्वॉल्व होते थे, और वो बहुत सफलतापूर्वक वो कैंपेन चला। तो मुझे लगता है कि कुछ उसी तरह की कोई चीज़, क्योंकि हेल्थ को जब तक हम सोशल मूवमेंट नहीं बनाएंगे और उन लोगों तक इसको नहीं पहुंचाएंगे, हेल्थ सर्विसेज को, जो शायद बड़े बड़े वॉच सेंटर्स को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हम वो सब भी करें, लेकिन साथ में गरीबों तक पहुंचने का भी जो है एक मैसिव प्लान बनाए। मैं तो डॉक्टर हरि मोहन से बहुत इंस्पायर होता था, जिनको पद्मश्री कितने दशकों पहले मिला था, और आई थिंक दिल्ली के तो वो लीडिंग आई सर्जन रहे हैं। सारे जितने पुराने राष्ट्रपति रहे सबके वो आई सर्जन थे, लेकिन जितना वो प्रोफेशनल काम करते थे उससे 10 गुना ज़्यादा मैंने उनको सोशल सर्विस करते हुए देखा है। जो उनके बेटे काम करते हैं, जो भी आप लोग तो परिचित ही होंगे उनके नाम से, सब आई सर्जन। तो उसी तरह का आई एम श्योर कि डॉक्टर अग्रवाल का भी तमिलनाडु में उसी तरह का नाम होगा। तो यहाँ पर भी आयुष अग्रवाल आई सेंटर का इसी तरह का नाम जमुना पार में, दिल्ली में, सब जगह पर फैले, यही हमारी शुभकामना है। और देखिए ये सारे बड़े बड़े दिग्गज लोग आपके कार्यक्रम में लाके आपने बैठाए हैं, तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको कार्यक्रम को और आपके सेंटर को कितना। डॉक्टर अग्रवाल आई हॉस्पिटल जो आज खुला है,
मैं डॉक्टर हर्ष अग्रवाल और डॉक्टर सिद्धार्थ सेन को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जैसे साउथ इंडिया में डॉक्टर अग्रवाल्स के बहुत से हॉस्पिटल्स और आई क्लिनिक्स चल रहे हैं, उसी तरह अब दिल्ली में भी आपने अपना ये 3rd आई हॉस्पिटल खोला है और विशेष तौर से जो हमारे ट्रांस यमुना के लिए ये जो फैसिलिटीज़ हैं, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ हैं, ये लेकर के आए हैं। मैं समझता हूँ कि अब प्रधानमंत्री जी ने जो पूरे देश को कहा है कि विकसित भारत के साथ साथ हमें अफोर्डेबल हेल्थ भी मिलेगी, मैं होप करता हूँ कि यहाँ पर भी अफोर्डेबल और वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ फॉर द पेशेंट्स ऑफ आई पेशेंट्स यहाँ मिलेगी और इस बात के लिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ।